Hello student of standard 12, learning organization of commerce and management, chapter 8, financial management, session 2. Topics of the session today are financial decisions, which will relate so many types of decisions that is to be taken. So the first one is decisions related to investment, decisions related to financing, and decisions related to dividend. So to begin this session, the first thing that we are going to go through is financial decisions that is to be taken. Financial management is also known as finance function, as it is related with the finance function, because the decisions that is being taken to perform the activities, which might be day-to-day activities and which might also relate to the future activities from which the benefits is to be earned. For all such things, we need money, we need finance, so that decisions can be taken accordingly. So the decisions related to finance to be invested in different departments, in different sectors for its smooth running. All such functions is related to finance, so it is considered as finance function. In this context, financial management has to take important decisions with regards to the following three problems. So when it comes to managing all such situations where financial decision is to be taken, three major problems arises, and that is decisions related to investment, that where, how, when and how much the investment is to be done, so that in present and in future too they can have a better return out of the money that is being invested. After that, it comes to decisions related to financing. The sources of money that is being collected from different ways. It can be share capitals, it can be debentures, it can be borrowings, anything. So is it being collected, it is being gathered in a proper way or not? And if the company or the organization is running well, is running sound and earning a good return, earning a good profit out of it, then what share of dividend is to be distributed? The decisions related to dividend is need to be taken at that particular step also. So all such decisions related to finance, how, from where, and after getting profit, so everything is to be decided in a very precise manner, in a very peculiar manner. So to know about all such situations, let's relate it stepwise. So the first thing that we will be knowing about is decisions related to investment. Long-term fixed capital is invested in the fixed asset of the business. Generally, the investment in a first stage is being done for the long-term capitals such as land, buildings, machineries. So when the amount of money is invested in all such sources, it needs to be thought that if the things had been invested in land or buildings, either they had been taken in a proper place or not,
either the fixed asset in future is going to help them or not. They need to keep in mind because these are such kind of assets which cannot be replaced again and again. इससे रिलेटेड डिसीजंस बहुत स्मार्टली लेना पड़ता है क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स हम बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक का सोच के लेते हैं, हम इसे बार बार या शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में चेंज नहीं कर सकते। तो जहाँ भी हम इसको ले रहे हैं वहाँ पर हमें पहले से ही माइंड सेटअप बनाना होता है कि लैंड है तो वो परफेक्ट प्लेस पे ली है कि नहीं, बिल्डिंग कितनी लास्ट करेगी, मशीनरीज़ की क्या टेक्नोलॉजीज़ वगैरह है और इससे हमें कितने बेनिफिट्स होने वाले हैं या नहीं। Financial manager has to take decisions regarding the selection of those assets in which capital fund is to be invested in future. So the financial manager who takes all the financial decisions regardingly select all those assets. He has to take decisions related to it so that whatever capital fund has been invested in it should get a better return in future. ऐसा नहीं है कि इनमें जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो वेस्ट है या वो हम ये सोच के कर रहे हैं कि ये तो करना ही था। नहीं, हमने अगर मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग्स कोई भी खरीदी है उनकी रिटर्न वैल्यू एक्सपेक्ट करके ही हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमने इसमें इन्वेस्ट किया है, इससे हमें फ्यूचर रिटर्न में क्या मिलने वाला है और क्या नहीं। विद दैट investment decisions is called capital budgeting. It is called capital budgeting क्यों? क्योंकि आपने अलग अलग सोर्स से कैपिटल को कलेक्ट किया होता है, फ्रॉम शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स एंड सो मेनी सोर्सेज। तो आप उन पैसों में से इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो कि आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपको लैंड लेनी है, कहाँ आपको कितनी बिल्डिंग्स लेनी है, आपको कितनी मशीनरीज परचेज करनी है और मनी की नीड कहाँ हो सकती है, हर एक चीज़। तो आप उसी कैपिटल जो गैदर किया है उसमें से एक बजट बना रहे हो, एक सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट तैयार कर रहे हो कि हमें यहाँ इतना इस तरह से इन्वेस्ट करना ही है। With that, elements of risk is involved in decisions related to investment. Generally, what does it happen? There is always a risk when investment decision is to be taken. क्योंकि आप अपने पैसे जो भी आपने कलेक्ट किए हैं वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ से आपको बहुत परफेक्ट रिटर्न्स मिलने ही वाले हैं। हमेशा ये रिस्क हो सकता है कि जिन भी चीज़ों में आपने इन्वेस्ट किया है, मान लो आपने मशीनरीज खरीदी है, टेक्नोलॉजीज चेंज हो गई, रिस्क था। लैंड है, उसकी वैल्यू इधर इंक्रीज़ भी हो सकती है या किसी भी रीज़न से डिक्रीज़ भी हो सकती है क्योंकि रिस्टेशन पीरियड्स भी होते हैं, तो वेरिएशंस आते रहते हैं। तो आप एक रिस्क फैक्टर लेते हो कि मैं इन्वेस्ट कर तो रहा हूँ, मे बी पॉसिबल कि यहाँ से हम मुझे अच्छा रिटर्न मिल भी सकता है और ना भी मिले, बट रिस्क इज़ टू बी टेकन। Hence, investment decisions should be evaluated in terms of expected return and risk. So, while taking all the investment decision, it is very necessary that you expect in both ways. That might be it is possible you will be getting a very good return out of all such investment that is being done, or it is a risk that has been taken while making such decisions. It might be possible that the investment that has been done by us, we will be learning, we will be earning the loss out of it. So both the factors can be faced. Various methods of capital budgeting are being used such as payback method, rate of return method, discounted cash flow method, etc. For taking investment decisions when there are more than one alternatives with financial manager for the investment of finance. Generally, when capital budgeting is being prepared, we had several methods that is being adopted. It can be payback method कि हमें इससे कितना रिटर्न मिलने वाला है, रेट ऑफ रिटर्न कि कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न, मतलब मैंने जितना किया है उसका कितना परसेंट मुझे उसमें से बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, या फिर व्हेन इट कम्स टू कैश फ्लो कि जब भी मैं उसको इनटू कैश, इन टर्म्स ऑफ कैश ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो मुझे जितना कैश मैंने इन्वेस्ट किया है या जितना कैश अब मुझे उससे रिटर्न मिलने वाला है उसमें कितना एक्सपेक्टेड था और कितना मिला है। तो वाइल मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट्स
While making decision related to such investment, we have so many number of alternatives. हमें डेप्थ में उनकी स्टडीज़ करनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही लैंड ऑप्शन नहीं है और हमें वो ही खरीदना है, एक ही बिल्डिंग है या फिर ये पर्टिकुलर मशीनरी ही है. समटाइम इट मे हैपन्स कि मशीनरी में लिमिटेशंस हो कि पर्टिकुलर कोई भी चीज़ बनाने के लिए उसके अलावा और मशीनरीज हमारे पास अवेलेबल ना हो, बट येट ऑप्शंस होते हैं. तो हमें हर ऑल्टरनेटिव को गो थ्रू कर लेना चाहिए, उनके बारे में जान लेना चाहिए और फिर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए. सो डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एज सच. बट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच ऑल्सो अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट्स. सो व्हाट आर दे? Need of total capital. The first thing that affects the investment is need of total capital. क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, बजटिंग कर रहे हैं, तो हमने ये चीज़ रेज की कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट माइट भी उसमें रिक्वायर्ड है, बट क्या जितना इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने सोचा है उतना कैपिटल हम कलेक्ट कर पाए हैं कि नहीं, उतना कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं, या टोटल कैपिटल हमारे पास जितना कलेक्ट हुआ है क्या हमारा इन्वेस्टमेंट उससे कम है या ज़्यादा है. ये सारी चीज़ें भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे सोचना है और कितना सोचना है. Estimated rate of return and profitability receivable in future from investment. The return that is being expected कि हम जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे हमें फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलने वाला है. हम इनको जब इन्वेस्ट करेंगे तो इससे प्रॉफिट हमें कितना मिलने वाला है फ्यूचर में, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इनमें इन्वेस्ट करके हमें बेनिफिट है या नहीं है, ये सारी ही चीज़ें हमें रिलेट करनी होती है. Estimated cash flow receivable from investment, the cash that is going to be received. मैंने जब कहा कि आप भी इन प्रेजेंट अगर कोई एसेट सेल करते हो और उससे आपको जब कैश मिल रहा है तो इससे कैश कितना मिलने वाला है उसका भी एस्टिमेट हमने जो एक्सपेक्ट किया होता है उससे कम कैश, क्योंकि बहुत बार होता है कि जब हमें जल्दी में कोई एसेट सेल करनी होती है तो उससे हम जितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं उतना हमें नहीं मिला होता है. तो वो भी फैक्टर इफ़ेक्ट करता है कि हमें जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ या नहीं. Element of risk involved in investment. As I told you that there are lot of risk while doing investment. You may either get a very good benefit out of it, and it might also be possible that you might be into risk by facing certain loss. It is not possible that each and every moment of time you are going to have a good profit out of it. Requirement of working capital after investment. Generally when investment is being done, आपने प्रोसेस शुरू कर दिया है, अब आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. तो आप वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि डे टू डे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें फेस करने होते हैं. तो उन सारे एक्सपेंसेस के लिए हम कितना प्रिपेयर्ड है, हमने कितना फाइनेंस असाइड किया है, इनके डिसीजंस भी उतने ही लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. Useful economic life of investment and its estimated life. Generally when the investment has been done on assets, हम ये भी डिसाइड करते हैं कि जो भी मशीनरीज़ वगैरह हमने ली है उसकी एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ कितनी है. हमने जब इस पर इन्वेस्ट किया है तो ये कितने टाइम तक चलने वाला है, कितने टाइम तक इसकी लाइफ है और हमें कितने टाइम बाद वापस री इन्वेस्ट करने का मौका आ सकता है. आफ्टर दैट इट कम्स टू significance of investment. Generally when it comes to significance of investment, तो investment is always related to so many circumstances that has been arising where we need the things. It might be possible that we are not getting at that particular place. So many ups and downs is to be faced while investing the money at particular place. Capital rationing. Generally the thing where the investment is to be done is to be decided very peculiarly. हमें लैंड, बिल्डिंग, एसेट्स और बाकी बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो हमें करने होते हैं, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल्स भी खरीदने हैं, हमें इक्विपमेंट्स भी खरीदने हैं, हमें सेटअप भी करना है, बहुत सारी चीज़ें. तो हमें
एक एवरेज बिठाना होता है कि हमें कब कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कितना मनी किन पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे हम एक ऑन एन एवरेज जितने भी एक्सपेंसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन सबको हम बैलेंस प्रॉपरली कर सकें. Certainty or uncertainty of earning in future, it will definitely happen. It will happen because क्योंकि हमने जो फ्यूचर अर्निंग एक्सपेक्ट की थी उससे हमें बहुत सारा फ़ायदा हो भी सकता है, नहीं भी. सर्कमस्टांसेस ऐसे अराइज हो सकते हैं कि हमें सडनली बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने को आ सकता है. तो सारी ही सिचुएशंस को एक्सपेक्ट करते हुए हम कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, हर एक सिचुएशन से रिलेटेड हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना ही होगा. The next topic that we are going to go through is decisions related to financing. Investment decisions are connected with the assets of the company, while financing decisions are connected with capital structure. जनरली व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू, क्योंकि हमें इन्वेस्ट कौन से एसेट्स में करना है वो हमें देखना होता है कि हमने इन एसेट्स में इतना इन्वेस्टमेंट किया है और इससे हमें रिटर्न मिलने वाला है या नहीं. बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसिंग हमें प्रॉपर फाइनेंस से रिलेट करना होता है. तो एज आई टोल्ड यू इट्स ऑल अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि हमने शेयर से कितने कलेक्ट किए, हमने डिबेंचर्स से कितने कलेक्ट किए, हमने और अदर सोर्सेज से मनी कैसे कलेक्ट किया है, वो जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है कैपिटल का कि दीज मच ऑफ अमाउंट हैज़ बिन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज कंसिडर्ड एज द डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग. Capital structure of the company consists of equity shares and preference shares, equity shares and debentures, equity shares, preference shares and debentures. So these are, because it can be possible that whenever the capital has been raised, either it has been only collected from equity shares, it can be possible it has been collected by both the equity shares and the preference shares, it can be from equity and debentures, and it can be from all the three, that is equity, preference and debentures. So the finance and the capital structure can be created from any certain sources. It is not as such कि यही particular source है जहाँ से money collect होने वाला है, but different sources जहाँ से हम money collect करते हैं वो किस तरह से हो रहा है, कितना हो रहा है, every decisions is to be taken while making a capital structure. Financial manager has to take decisions regarding the portion to be maintained between equity and debt in capital structure. While making the decision related to the capital structure, financial manager has to take every decision that either the equity have been raised or the borrowing have been raised a lot. तो हमें कितना पोर्शन इक्विटी में से कलेक्ट करना है, कितना पोर्शन हम डिबेंचर्स या बोरोइंग्स में से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का डिसीजन भी फाइनेंशियल मैनेजर को अकॉर्डिंगली करना होता है. A balance between equity capital and debt is necessary. Capital structure having a proper proportion of equity capital and debt is called optimum capital structure. What is optimum capital structure? जनरली हम जो बैलेंस बनाते हैं कि हमें इक्विटी कैपिटल या हम जो भी बोरोइंग्स लोन्स वगैरह ले रहे हैं, जब भी जितनी ज़रूरत है हमने एक प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया होता है. तो जितना हम बैलेंस करते हैं एक रेशियो कि हमने इतना अमाउंट इक्विटी से लेना है, इतना अमाउंट हमें दूसरे सोर्सेज से कलेक्ट करने हैं, उस बैलेंस को, उस मिनिमम प्रोपोर्शंस जो हमने बनाए होते हैं उसे हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं. कि हमने एक बैलेंस, एक रेशियो तैयार किया है कि हम इन सोर्सेज से इतने मनी जो है कलेक्ट करेंगे, इतना कैपिटल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कलेक्ट करेंगे. ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ less risky and ensures maximum return. Generally it ensures maximum return because we had pre-decided that from equity shares or preference shares we will be collecting this much capital, and from borrowings, debentures, loans we will be collecting, and if we have balanced a good amount, so it becomes easy to settle the amount in future and we can expect a good return out of it. Capital structure is a mixture of owner's capital and debt. Yeah, because as shareholders are considered as owners of the company, so
it is being as such that when the capital structure, it is the owner's capital that has been raised in the organization. With that, the debt that has been created is also being included. So it is the mixture of both the owner's capital and the debt. But there are certain factors which affect financing also, that is internal factors and external factors. Both the factors are there which affect the source of finance that is to be collected from different sources. So let's learn about internal factors. Types or nature of business, size of business, growth of business, financial requirement, nature of assets and requirements, attitude of directors. सो टाइप और नेचर ऑफ बिजनेस रिलेटेड टू कि आपका बिजनेस कैसा है, किस पर्पस के लिए आप काम कर रहे हो, आपका एम क्या है, फाइन, उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. आप जिस टाइप की कंपनी हो या जिस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और आपके कंपनी में कितने लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे. आफ्टर दैट इट कम्स टू साइज ऑफ बिजनेस, कितना बड़ा बिजनेस है. अगर छोटा स्मॉल स्केल बिजनेस है तो आपको थोड़े पैसे की ज़रूरत है और उसमें आप अच्छा कर सकते हो. इफ़ इट्स अ ह्यूज कंपनी, इफ़ इट्स अ ह्यूज organization, then the investment will be a lot and you need to collect all such from so many sources. फिर आपका बिजनेस कितना फास्ट या कितना स्लो या कितना स्टेडी ग्रो कर रहा है. जितनी ग्रोथ होगी, आपका प्रॉफिट हो रहा है, उतना ही कम या ज़्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी. एक्चुअल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट किन चीज़ों के लिए है, किस टाइप की एसेट्स है जो आप यूज़ कर रहे हो, या कौन सी ऐसी एसेट्स है जिनकी रिक्वायरमेंट्स आपको पड़ सकती है. और डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर जो भी कंपनीज़ के हैं वो कितना पॉजिटिवली अपने कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, वो कितना पॉजिटिवली उसके ऊपर काम कर रहे हैं. ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है वाइल टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस. बट अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपरली नहीं हो रही है तो फाइनेंस कलेक्ट होगा नहीं होगा, या कितना ज़्यादा कितना कम होगा, ये सारे ही डिसीजंस लेना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं. आफ्टर दैट इट कम्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, कंडीशंस ऑफ कैपिटल मार्केट, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ इशू, एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स, rate of interest prevailing in market, legal restrictions, institutional investors. So all these are external factor. कि आपके जो भी शेयर्स वगैरह है कैपिटल मार्केट में, आपका कंडीशन क्या है, आपके जो सिक्योरिटीज़ आपने इशू किए हैं उनमें वेरिएशंस किस तरह से आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आपकी कंपनीज़ वगैरह के बारे में कैसा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है. फिर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चल रहा है मार्केट में, आपकी फेम, आपकी पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है. अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो नोबडी इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, नोबडी इज़ गोइंग टू ट्रस्ट इन योर कंपनी. देन गवर्नमेंट और द कंपनीज एक्ट हैव पुट सर्टन लीगल रेस्ट्रिक्शंस, तो आपको वो भी फॉलो करना पड़ता है. और उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितने हैं, बैंक्स है या कोई दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो कितना ज़्यादा प्रिविलेज ले रहे हैं या एफर्ट डाल रहे हैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए. सो ऑल सच फैक्टर्स इज़ टू बी केप्ट इन माइंड while taking decisions that is related totally to the finance. The next thing that we are going to know about is decisions related to dividend. Dividend is a part of profit of a company which is distributed among its shareholders. Generally when it comes to dividend, as I told you that it is totally related to the amount of profit that has been earned by a company, and the share of that particular profit is being distributed among its shareholders. क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने ट्रस्ट किया है आपकी कंपनी पे, तो उन्हें भी उस प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलना चाहिए, तो वो हिस्सा डिविडेंड की तरह कंसिडर किया जाता है. Dividend is a return to shareholder on their investment, as they had invested in your company at that particular stage when we were need in the capital formation. So now it's time to give them a good return and it will be considered as dividend. As per Companies Act,
dividend can be paid in cash or check on paid up capital of share, whatever amount has been paid up, as it might be possible कि 100 रुपीज़ का शेयर था बट अभी तक आपने उसमें से सिर्फ 40 रुपीज़ ही लिए हैं, तो उसके एवरेज के अकॉर्डिंगली जो भी डिविडेंड पे करने को आता है, या तो आप उसे कैश में पे कर सकते हो या उस डिविडेंड को आप चेक में दे सकते हो, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द कन्वीनियंस, ये कैसे भी पॉसिबल है। द पेमेंट फाइनेंशियल मैनेजर has to decide what part of profit should be distributed as dividend and what part of profit should be retained in business. So the financial manager can take this particular decision that profit has been earned, but out of that particular profit only this much portion of dividend is to be distributed and other that will be remaining will be retained in the business for further progress, for reinvestment, for any other purpose. So it is not at all necessary that all the profit that has been earned by a company is to be distributed as dividend. It can be remaining with the company itself and reinvest in the future too. Generally, what happens that retained earning in business is a significant internal sources of finance. Retained earning is a kind of earning, you can say, that is being aside from the profit. Profit में से एक हिस्सा रखा जाता है। क्यों? ये इंटरनल सोर्स है कि कभी भी कोई भी नीड अचानक से रेज होगी, जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपने जो भी रखा हुआ है वो किस तरह से, वो जनरली रिजर्व्स वगैरह होते हैं, वो कभी भी यूटिलाइज किए जा सकते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड अफेक्ट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। एज गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज बीइंग पेड टू द शेयर होल्डर्स, इट क्रिएट्स इम्प्रेशन, इट क्रिएट्स मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। आप अच्छा डिविडेंड पे कर रहे हो, आप या फिर रेगुलर डिविडेंड पे कर रहे हो, तो कंपनी की इंप्रेशन बनेगी कि नहीं, यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट प्रॉफिट हो रहा है और इतना हिस्सा हमें हर वक्त मिलता है। ट्रस्ट क्रिएट होगा इन्वेस्टर्स का एंड दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट एज मच एज पॉसिबल। इफ़ a major portion of profit is distributed as dividend, it decreases the plowing back of profit. If we are thinking that investors will be increased by giving a good amount of dividend, the maximum amount of portion of profit of dividend, then generally what it happens that the profit that has been earned, a good reserve has not been created, and for reinvestment it creates a great risk. So on the other hand, if a major portion of profit is reinvested, then less amount of is left for dividend, and on second hand it has both the effects. अगर आप ज़्यादा डिविडेंड देते हो तो आप प्रॉफिट ज़्यादा रिजर्व नहीं कर पाते हो, और अगर आप प्रॉफिट का पोर्शन ज़्यादा रिजर्व कर देते हो या रीइन्वेस्ट कर देते हो तो आप डिविडेंड बहुत कम देते हो, और इनके दोनों ही इफ़ेक्ट्स जो है दिखाई देने लगते हैं। सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स that is affecting dividend. So what are they? Divisible profit of company during the current financial year. Generally the dividend when it is being provided, कितना प्रॉफिट है जिसका हिस्सा पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में हुआ है, और उसमें से हम जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, या हमने जितना सोचा उतना हुआ या नहीं। आफ्टर दैट एस्टिमेशन ऑफ इनकम इन फ्यूचर, एक एजम्पशन हम क्रिएट करते हैं कि फ्यूचर में हमें कितना बेनिफिट होने वाला है या नहीं। अगर हमें ये लगता है कि नहीं, फ्यूचर में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो हमें फ्यूचर के लिए जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से शेयर ज़्यादा सिक्योर करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम डिविडेंड कम डिक्लेयर करते हैं। With that it comes that rate of dividend paid by the company in the past years. What was the rate of dividend that was paid in past year? अगर हमने पिछले साल सिर्फ 2% ऑफ डिविडेंड पे किया था और इस साल पॉसिबल है कि हम 10% पे करते हैं, बट ये एक ह्यूज अमाउंट होगा क्योंकि फ्यूचर में वापस ये पॉसिबिलिटीज़ रेज हो जाएगी कि उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसे होगी, बट ऐसा हो सकता है ना कि फ्यूचर में हम उतना प्रॉफिट अर्न करें ही ना, तब हम क्या करेंगे? तो हमें जो भी पास्ट में हमने पे किया होता है उससे ऑन एन एवरेज मिलता हुआ डिविडेंड हमें इस पर्टिकुलर ईयर में भी फेस करना पड़ता है। आफ्टर दैट इट कम्स टू नीड ऑफ प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि हमें अब जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है उसमें से कितना हिस्सा हमें प्रॉफिट की तरह
अभी भी अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में रखना है। अगर हमने डिविडेंड ही कर दिया तो हम अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, जो अगेन हमारे लिए बहुत मेजर डिफ़िकल्टीज़ को क्रिएट करता है। With that it comes that financial conditions and financial needs of company at present, that what are the need of finance in present। अगर हमें अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है या हमने एक्सपांशंस के बारे में सोचा है तो हम पहले उन्हें फुलफ़िल करने के बारे में सोचेंगे। डिविडेंड हम कम पे करेंगे चल जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स को समझाया जा सकता है कि अगर हम प्रॉपर इन्वेस्ट कर रहे हैं या प्रॉपर हम एक्सपांशन वगैरह कर रहे हैं तो शायद फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा डिविडेंड देना पॉसिबल हो सकता है। तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट फाइनेंशियल नीड्स क्या है, उसे दिमाग में रखना बहुत एक्सेस ज़रूरी होता है। रेशियो ऑफ रिजर्व्स विथ कंपनी, what kind of reserves that has been created by the company is also important, because any circumstances may arises any moment of time। अगर हमने प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिजर्व्स नहीं रखा है तो उन सिचुएशन से कोप अप करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट अ प्रॉपर अमाउंट or proper ratio of profit is to be kept। Future planning of profitable investment, when we are doing any kind of investment we are thinking that in present if we are doing reinvestment of good amount in future we might earn more profit out of it। तो हमें ये सोच के भी जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है उसमें से कितना हिस्सा डिविडेंड में देना है या नहीं देना है ये डिसाइड करते हैं। देन एटीट्यूड ऑफ अ कंपनी, डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, जनरली व्हाट डज इट हैपन कि डायरेक्टर्स कितना शेयर देना चाहता है कि नहीं। डायरेक्टर्स कई बार पैसों को रोक लेना चाहता है, बहुत सारी अदर पॉलिसीज़ को दिमाग में रखते हुए, बहुत सारे अदर सर्कमस्टांसेस को दिमाग में रखते हुए, तो वो कितना इन्वेस्ट करेगा, कहाँ इन्वेस्ट करेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना उसके लिए ज़रूरी होता है। आफ्टर दैट इट कम्स टू टैक्सेशन पॉलिसी। आप जितना डिविडेंड दिखाओगे, आप जितना प्रॉफिट हायर रेट्स में दिखाओगे उतना टैक्स आपको पे करना पड़ता है, उतना डिविडेंड पे टैक्स आपको पे करना पड़ता है, तो आप उतना ही कम दिखाने की कोशिश करते हो। देन लीगल रेस्ट्रिक्शन, एक लिमिटेशंस होती है हर ऑर्गेनाइजेशन की कि आप इस लिमिट तक ही एक अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, उसके ज़्यादा नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी डिविडेंड को कंट्रोल कर दिया जाता है। देन इट कम्स टू expectation of shareholders of the company। what is the expectation of shareholders? जनरली एज आई टोल्ड यू कि अगर आपने पास्ट ईयर्स में थोड़े कम डिविडेंड दिए होते हैं और इस बार आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है और आपने उन्हें बहुत ज़्यादा डिविडेंड, तो उनका हर साल अब और ज़्यादा की उम्मीद हो जाएगी। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपकी कंपनी उतना ही अच्छी तरह से हर साल काम कर रही है, तो ये सर्कमस्टांसेस अराइज हो सकती है। तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई आप रेज नहीं कर सकते, उन्हें बैलेंस करने के लिए भी हमें डिविडेंड कम या ज़्यादा करना होता है। आफ्टर दैट इट कम्स टू कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट। व्हाट इज़ द एक्चुअल कंडीशन, हमें ओवरऑल कैपिटल मार्केट को रीड करना होता है, स्टडी करना होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे बेनिफिट मिल रहा है तो मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर दूँ या कितना, मुझे हर टाइप की सिचुएशन के कैपिटल मार्केट कभी भी फ्लक्चुएट कर सकता है, कभी भी उनमें अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली अपने पास मनी स्टोर करके रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से डिविडेंड में वेरिएशंस लाने पड़ेंगे। सो दिस डिसीजन इज़ ऑल्सो टू बी टेकन वेरी पिक्यूलरली। आफ्टर दैट इट कम्स टू ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी, कंपनी कितने परसेंटेज से या किस रेशियो से अपवर्ड्स जा रही है, जो प्रॉफिट आप हर साल एक्सपेक्ट कर रहे हो उनमें कितना वेरिएशन है, मतलब कम ज़्यादा अगर हो रहा है तो आप उन सिचुएशंस को कैसे टैकल करने वाले हो ये भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट अर्न किया इस बार हम बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे देते हैं, अगली बार देखेंगे और एकदम से लॉस हुआ, तो उनको फेस करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, फाइनेंस अवेलेबल नहीं होगा। सो यू नीड टू बी दैट ready for the situation। and it comes to liquidity position of the company, that what is the amount of cash flow that is being present with the company। it is very necessary that when we decide about the day-to-day activities we need to have a good amount of cash flow with us। if it is not available with us then it might create of possibility of risk that is being faced, the trouble that is being faced by the company। so all these were the financial decisions that is to be taken while investing, while collecting the finance from different sources and making a capital structure, and while earning
the profit and distributing a good amount of dividend out of it. So all the decisions when it comes to finance is to be taken by taking consideration, by taking into mind that there are certain factors which is affecting all such decisions. So should be taken very precisely and determinately. So these were all the topics that we had gone through today in this particular session. Keep learning, keep revising. Have a great time ahead. Thank you.